السلام علیکم۔ ادبستان میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی کہانی کی جانب جو خوف اور فلسفے کی دنیا کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ کہانی ہے فرینکنسٹائن کی، جسے مشہور مصنفہ میری شیلے نے لکھا۔ یہ داستان ہے ایک نوجوان سائنسدان وکٹر فرینکنسٹائن کی، جو علم کی پیاس میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے زندگی کو اپنی مرضی سے تخلیق کرنے کا خواب دیکھا، مگر وہ خواب جلدی ایک بھیانک حقیقت بن گیا جب اس کی تخلیق کردہ مخلوق خود اس کے لیے عذاب بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں علم، انسانیت اور ہماری تخلیقات کے اخلاقی پہلوؤں پر گہرے سوالات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم آپ کو سنائیں گے فرینکنسٹائن کی خوفناک اور جذبات سے بھری داستان، اور ایک ہی ویڈیو میں اس کا مکمل اقتباس کر کے سنائیں گے۔ پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ فرینکنسٹائن۔ کہانی کا آغاز کیپٹن رابرٹ والٹن کے خطوط سے ہوتا ہے، جو وہ اپنی بہن مارگریٹ سیول کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ والٹن ایک مہم جو ہے جو شمالی قطب کی دریافت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اپنے جہاز کے ساتھ برفانی سمندر کی گہرائیوں میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، جہاں بلند و بالا برفانی تودے پانی میں تیرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک خطرناک اور تنہائی سے بھرا ہوا سفر ہے، لیکن والٹن کی خواہش ہے کہ وہ دنیا میں ایک نئی دریافت کرے جو اسے لازوال شہرت دلائے۔ والٹن کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے عملے کے ساتھ ایک مشکل سفر پر ہے۔ اس کی تحریریں اس کی اپنی تنہائی اور مہم میں کامیابی کی بے پناہ خواہش کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ وہ اس سفر میں خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کسی حقیقی دوست کی کمی محسوس کرتا تھا جو اس کے خیالات اور خوابوں کو سمجھ سکے۔ اسی دوران وہ قطب شمالی کے برفانی سمندر میں ایک عجیب و غریب واقعے کا سامنا کرتا ہے۔ ایک دن والٹن اور اس کے عملے کو برف پر ایک کمزور اور قریب المرگ شخص ملتا ہے۔ یہ شخص وکٹر فرینکنسٹائن ہے، جو سردی اور تکلیف کی حالت میں ہے۔ جب اسے جہاز پر لایا جاتا ہے اور اسے دیکھ بھال فراہم کی جاتی ہے تو وہ کیپٹن والٹن کو اپنی عجیب و غریب کہانی سناتا ہے، جو زندگی، علم اور ایک مخلوق کی تخلیق کے گرد گھومتی ہے۔ والٹن کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس آدمی کی کہانی غیر معمولی ہے، اور وہ اسے پورے دھیان سے سنتا ہے۔ وکٹر فرینکنسٹائن والٹن کو اپنے بچپن کے بارے میں بتاتا ہے، جو سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت شہر جنیوا میں گزرا۔ وکٹر کا تعلق ایک امیر اور معزز خاندان سے تھا۔ اس کے والد الفونس فرینکنسٹائن ایک شریف اور محبت کرنے والے انسان تھے، جبکہ اس کی والدہ کیرولین نہایت نرم دل اور خیرخواہ خاتون تھی۔ وکٹر کا بچپن خوشیوں اور محبت سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی۔ وکٹر اپنے بچپن کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا سب سے قریبی رشتہ اس کی منہ بولی بہن الزبتھ لاونزا کے ساتھ تھا، جسے اس کے والدین نے گود لیا تھا۔ الزبتھ نہایت خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی، جو وکٹر کے دل کے بہت قریب تھی۔ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور عزت تھی، اور وکٹر کی زندگی کی بڑی خوشیوں میں سے ایک خوشی الزبتھ کی موجودگی تھی۔ وکٹر کے بچپن کا دوسرا اہم کردار اس کا دوست ہنری کلیئروال تھا۔ ہنری ایک خوش مزاج اور تخلیقاتی لڑکا تھا، جو ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا اور کہانیاں تخلیق کیا کرتا تھا۔ ہنری کی خوش مزاج طبیعت اور خیالی دنیا میں کھوئے رہنے کی عادت نے وکٹر کی زندگی میں ایک خاص رنگ بھرا تھا۔ دونوں دوست اکثر ساتھ کھیلتے اور اپنی زندگی کے خوابوں اور خواہشات کے بارے میں باتیں کرتے تھے، لیکن بچپن کے اس خوشگوار دور کے باوجود وکٹر کی فطرت میں ایک بے چینی اور تجسس پایا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ دنیا کے رازوں کو جاننے اور حقیقت سے پرے چھپے ہوئے علم کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو وہ قدیم کیمیا دانوں اور فلسفیوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، جو موت اور زندگی کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کورنیلس ایگریپا، پاراسلس اور البرٹس میگنس جیسے فلسفیوں سے متاثر ہوتا ہے، جو اسے موت کو شکست دینے کے خیال میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وکٹر اپنی کہانی آگے بڑھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب وہ 17 سال کا ہوا تو اس نے جنیوا کو چھوڑ کر جرمنی کے انگلسٹاڈٹ شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ انگلسٹاڈٹ ایک مشہور تعلیمی مرکز تھا، جہاں دنیا کا بہترین دماغ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ وکٹر یہاں پر اپنی تعلیم کا آغاز فطری فلسفے اور کیمسٹری میں کرتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں وکٹر کو مختلف قسم کی سائنسی تھیوریز اور فلسفیانہ مباحثوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات دو اہم پروفیسروں سے بھی ہوتی ہے، پروفیسر کرمپی
जो विक्टर के इब्तदाई ख्यालात और उसके कदीम फलसफियों से मुतासिर होने को गलत समझते हैं, और प्रोफेसर वॉल्डमैन जो उसे जदीद साइंस की दुनिया में आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। प्रोफेसर वॉल्डमैन के साथ गुफ्तगू विक्टर की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ बन जाती है। वो विक्टर को साइंस के जदीद असूलों की तरफ माइल करते हैं और यहीं से विक्टर का जुनून बढ़ने लगता है। वो इस ख्वाब में गिरफ्तार हो जाता है कि वो ज़िंदगी के राज को खोल सकता है और मुर्दा जिस्म को ज़िंदा कर सकता है। उसका ये जुनून दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और वो खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। उसकी सारी तवज्जो तजर्बात और तहकीकात पर मरकूज हो जाती है। विक्टर दिन रात अपनी तजर्बागाह में काम करता है, लाशों के आज़ा जमा करता है और मुख्तलिफ तजर्बात के ज़रिए एक ज़िंदा मखलूक तख्लीक करने की कोशिश करता है। वो एक नई मखलूक बनाने का ख्वाब देखता है जो इंसानों से मुख्तलिफ हो, लेकिन जब वो कामयाब होने के करीब पहुंचता है तो उसके अंदर एक अजीबो गरीब एहसास पैदा होता है। कई महीनों की मेहनत और तहकीक के बाद एक रात विक्टर अपने तजर्बे में कामयाब हो जाता है। एक तारीक और खौफनाक रात में उसकी तजर्बागाह में एक नई मखलूक जिंदा होती है। विक्टर ने मुख्तलिफ लाशों के आज़ा से एक बड़े कद काट वाली मखलूक तैयार की थी जिसे उसने बिजली की मदद से जिंदा किया था। लेकिन जब वो मखलूक अपनी आंखें खोलती है तो विक्टर की खुशी एक लम्हे में खौफ और दहशत में बदल जाती है। मखलूक का चेहरा बहुत ही बदसूरत और खौफनाक था। उसकी आंखें बेजान और खाली नजर आ रही थीं। उसके जिस्म की जिल्द जर्द और बेजार थी, जैसे मुर्दा जिस्म पर जिंदगी का रंग ना चढ़ा हो। विक्टर को अपनी गलती का फौरन एहसास होता है। उसका ख्याल था कि वह एक अजीम तख्लीक करेगा, लेकिन जो मखलूक उसने पैदा की थी वो एक भयानक ख्वाब जैसी थी। विक्टर अपने तजर्बे के नतीजे से इतना खौफजदा होता है कि वो अपनी तजर्बा का छोड़कर भाग जाता है। वो सारी रात सड़कों पर घूमता फिरता रहता है, अपने किए पर नादिम और पछताता हुआ। उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। जब विक्टर अगली सुबह वापस अपनी तजर्बागाह में लौटता है तो मखलूक गायब हो चुकी होती है। विक्टर को कुछ सुकून मिलता है कि शायद मखलूक हमेशा के लिए कहीं दूर चली गई है, लेकिन उसका खौफ और जहनी दबाव कम नहीं होता। वो अपनी हालत से निकल नहीं पाता और इस पर शदीद बीमारी का हमला होता है। कई हफ्तों तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाता। इसी दौरान उसका बचपन का दोस्त हेनरी क्लेयरवॉल इंगलस्टार्डट आता है और विक्टर की देखभाल शुरू कर देता है। हेनरी अपनी खुश मिजाज तबीयत से विक्टर की तबीयत बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर के दिलो दिमाग में मखलूक की याद हमेशा जिंदा रहती है। विक्टर जब अपनी बीमारी से सेहतयाब होता है तो उसे जिनीवा से एक खत मौसूल होता है जिसमें लिखा होता है कि उसका छोटा भाई विलियम कत्ल हो गया है। ये खबर विक्टर के लिए एक शदीद सदमा बनकर आती है और वो फौरन जिनीवा वापस लौटता है। जब विक्टर अपने घर वापस आता है तो वो एक शदीद जज्बाती सदमे से गुजरता है। उसका छोटा भाई विलियम कत्ल कर दिया गया था और उसका खानदान गम में डूबा हुआ था। जिनीवा का पुरसकून शहर जो कभी विक्टर के लिए खुशियों की अलामत था, अब एक गमगीन मकाम बन चुका था। विक्टर की वालदा पहले ही दुनिया से जा चुकी थी और अब ये नया अलमिया उसके वालिद अल्फोंस और बहन एलिज़ाबेथ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। विक्टर अपने भाई की लाश देखने के लिए जाए हादसा पर जाता है। वहाँ एक खास चीज़ देखकर उसके जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ जाती है। वो दूर एक सायेदार दरख्त के नीचे अपनी मखलूक को देखता है जो छुपकर उसे घूर कर देख रहा होता है। वो फौरन समझ जाता है कि उसका खौफनाक तजर्बा ही उसके भाई के कत्ल का सबब बना था, लेकिन बदकिस्मती से कत्ल का इल्ज़ाम एक मासूम लड़की पर पड़ता है, जस्टिन मोड्स, जो उनके घर में नौकरानी थी और उनके ख़ानदान का हिस्सा समझी जाती थी। उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने विलियम का कत्ल किया है। जस्टिन के पास विलियम का एक तावीज़ पाया गया था और उसके नतीजे में वो कातिल करार दी जाती है। वो मासूम थी, लेकिन माशरा उसकी बेगुनाही को मानने से कासिर था। विक्टर दिल ही दिल में जानता था कि असल कातिल उसकी अपनी तख्लीक करदा मखलूक है, लेकिन वो खौफ और परेशानी की वजह से कुछ कह नहीं पाता। वो अदालत में जस्टिन को मरते देखता है, लेकिन खामोश रहता है। इस खामोशी और बुज़दिली का बोझ उस पर जिंदगी के भर के लिए सवार हो जाता है। जस्टिन की मौत के बाद विक्टर को अपनी मखलूक के नतीजे में होने वाले नुकसानात का शदीद एहसास होने लगता है। वो अपनी ज़हनी हालत को बेहतर करने के लिए स्विस एल्प्स के बर्फानी पहाड़ों की तरफ सफ़र करता है। वो इन बर्फपोश चोटियों में कदम कुदरत के दिलफरेब मनाजिर के जरिए अपने ज़मीर के दर्द को दबाने की कोशिश करता है। एक दिन जब वो पहाड़ों के बीचों बीच चल रहा होता है, अचानक उसकी मखलूक उसके सामने आ जाती है। बर्फानी मनाजिर के बीच में खड़ी ये भयानक मखलूक एक हैरतअंगेज तजाद पेश करती है। मखलूक विक्टर के सामने आती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा या नफरत की बजाय अफसरदगी और तन्हाई के आसार होते हैं। वो मखलूक विक्टर से कहती है कि वो इसकी बात सुने। वो इसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है
कि कैसे वो विक्टर के तजर्बे से जिंदा होकर भाग निकली थी और दुनिया के सामने पहली बार आई। मखलूक बताती है कि वो किस तरह इंसानों की दुनिया में आई, मगर उसे हर तरफ नफरत और हकारत का ही सामना करना पड़ा। मखलूक अपनी कहानी में बताती है कि वो जंगलों में कई दिनों तक भटकती रही, भूख, सर्दी और खौफ में मुब्तला। एक दिन उसे गरीब किसान खानदान डिलासी के घर के करीब एक छुपने की जगह मिल जाती है। ये घर जर्मनी के एक दूर दराज गाँव में था। मखलूक ने इस छोटे से घर में रहने वाले खानदान को छुपकर देखना शुरू किया। वो उन्हें रोजाना काम करते देखती थी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगियों को समझने लगी। ये खानदान गरीब था, लेकिन उनमें मोहब्बत और हम आहंगी थी। मखलूक ने उनसे बातचीत नहीं की, बल्कि वो उनकी खिड़की से बाहर छुपकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का मुशाहिदा करती थी। मखलूक बताती है कि वो एक अजीबो गरीब चीज थी, लेकिन उसने डिलासी के खानदान से इंसानी जज्बात, मोहब्बत, दुख और बातचीत के फन को सीखा। मखलूक ने इंसानी जबान सीखना शुरू की और उन्हें किताबें पढ़ते हुए सुना। वो इस खानदान से अपनी सादगी में मुतासिर हुई और उसे सोचा कि शायद अगर वो उनके सामने आएगी तो वो इसे कबूल कर लेंगे, चाहे वो कितनी ही भयानक क्यों ना हो। एक दिन मखलूक ने हिम्मत की और घर में मौजूद बूढ़े नाबीना शख्स मिस्टर डिलासी से बात करने का इरादा किया, क्योंकि वो इसकी शक्ल को नहीं देख सकता था। जब वो बातचीत कर रही होती है तो घर के बाकी अफराद भी वापस आ जाते हैं और मखलूक को देखते ही वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उनके दिलों में मखलूक की बदसूरती से इतनी दहशत पैदा हुई कि उन्होंने उसे धक्के दे देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये लम्हा मखलूक के लिए तबाहकुन था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई भी उसकी कबूलियत के लिए तैयार नहीं था। उसका दिल नफरत और बदले की आग में जलने लगता है। जब मखलूक विक्टर को अपनी कहानी मुकम्मल करके सुना देती है तो वो विक्टर से एक मुतालबा करती है। वो कहती है कि चूंकि विक्टर ने उसे तख्लीक किया और उसकी तन्हाई का सबब बना, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए एक साथी मखलूक बनाए। मखलूक कहती है कि अगर उसे एक साथी मिल जाए तो वो दोनों कहीं दूर जंगलों में चले जाएंगे और इंसानों को दोबारा कभी तंग ना करेंगे। विक्टर इस मुतालबे पर हैरान होता है और खौफ महसूस करता है। वो जानता है कि इस मखलूक को मजीद कोई तख्लीक देना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक इखलाकी जिम्मेदारी का भी एहसास है। वो अपने आप को मुजरिम महसूस करता है, क्योंकि उसकी अपनी तख्लीक की वजह से मखलूक की जिंदगी इस कदर अजियतनाक हो गई थी। बहुत सोचने के बाद विक्टर आखिरकार मखलूक के मुतालबे को मान लेता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ छुपा होता है और वो जानता था कि ये फैसला उसे मजीद मुश्किलात में डाल सकता है। विक्टर अपने वादे को निभाने के लिए लंदन का सफ़र करता है। वो वहाँ हेनरी क्लेयरवॉल के साथ रहता है, जो अभी भी विक्टर की असल हालत से बेखबर है। लंदन में विक्टर को वो तमाम मवाद और इल्म मिल जाता है जिसकी उसे दूसरी मखलूक की तख्लीक करने के लिए ज़रूरत थी, लेकिन विक्टर इस काम में ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करता। उसे अपने अंदर एक खौफ और नदामत का एहसास होता है और वो जानता है कि वो जो काम कर रहा है उसके नताइज नहायत संगीन हो सकते हैं। इसके बावजूद वो इस मखलूक से किए गए वादे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। आखिरकार विक्टर और हेनरी स्कॉटलैंड के दूर दराज ऑर्कने जज़ायर पहुंचते हैं। यहाँ एक छोटे और वीरान जजीरे पर विक्टर एक छोटी सी तजर्बागाह बनाता है। वो मुकम्मल तन्हाई में रहता है ताकि कोई उसके काम में मुदाखलत ना कर सके। वो मखलूक ये मंजर देख रही थी और विक्टर की बेवफाई पर गजबनाक हो जाती है। मखलूक गुस्से में विक्टर को धमकी देती है और कहती है, मैं तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे पास आऊँगा। ये धमकी विक्टर के दिल को खौफ से भर देती है। वो जानता है कि मखलूक अब उसे और उसके ख़ानदान को नुकसान पहुँचाने से बाज नहीं आएगी। विक्टर जनीवा वापस आ जाता है, जहाँ उसकी शादी एलिज़ाबेथ के साथ होने वाली है। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन विक्टर के दिल में मखलूक की धमकी का खौफ छाया होता है। वो जानता था कि मखलूक शादी की रात उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मखलूक किस पर वार करेगी। विक्टर और एलिज़ाबेथ की शादी इटली में एक खूबसूरत तकरीब के साथ होती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश नज़र आते हैं, लेकिन विक्टर के दिल में एक अजीब सा खौफ छुपा होता है। वो इस रात का इंतज़ार कर रहा होता है जब मखलूक उस पर वार करेगी। शादी की रात विक्टर अपनी हिफाजत के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मखलूक विक्टर को नुकसान पहुंचाने की बजाय एलिज़ाबेथ को कत्ल कर देती है। विक्टर की ज़िंदगी का सबसे कीमती रिश्ता ख़त्म हो जाता है और वो शदीद गम और पछतावे में मुब्तला हो जाता है। एलिज़ाबेथ की मौत के बाद विक्टर के अंदर सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची होती है, बदला। वो मखलूक को ख़त्म करने की कसम खाता है और उसका ताक़ुब शुरू कर देता है। मखलूक यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से भागती हुई बर्फानी आर्कटिक की तरफ निकल जाती है। विक्टर उसके ताक़ुब में अपनी सेहत और ताकत खो बैठता है।
वो दिन रात मखलूक का पीछा करता है और हर जगह मखलूक उसके लिए पैगाम छोड़ती है जिनमें वो विक्टर को चैलेंज करती है। ये ताक़ुब दोनों के लिए एक अजियतनाक खेल बन जाता है और विक्टर को एहसास होने लगता है कि शायद वो कभी भी इस मखलूक को ख़त्म ना कर पाएगा। आर्कटिक के बर्फानी मैदानों में विक्टर आखिरकार अपने आखिरी लम्हे गुजार रहा होता है। उसकी सेहत बिगड़ चुकी होती है और वो अपने मकसद में नाकाम हो रहा होता है। वो कैप्टन वॉल्टन के जहाज़ पर पहुंचता है जहां वो अपनी कहानी सुनाता है। विक्टर की मौत के बाद मखलूक एक आखिरी बार जाहिर होती है। वो विक्टर की लाश पर अफसरदा खड़ी होती है और अपनी ज़िंदगी की तबाही का एतराफ़ करती है। मखलूक बताती है कि उसे इंतकाम से कभी सुकून नहीं मिला। वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला करती है और हमेशा के लिए बर्फानी समुद्र की गहराइयों में चली जाती है जहां उसे कोई भी कभी ना पा सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी शैले की लाजवाल तख्लीक, फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंसान के जुनून, इल्म की हदों को पार करने की जस्तजू और उसके नताइज की गहराइयों को बयान करती है। ये दास्तान ना सिर्फ एक होलनाक मखलूक की है बल्कि इंसानियत, तन्हाई और जिम्मेदारी के बारे में भी अहम सवाल उठाती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने एक अजीम ख्वाब देखा, लेकिन वो ख्वाब जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदल गया। उसकी तख्लीक जो मोहब्बत और कबूलियत की ख्वाहां थी, नफरत और तन्हाई का शिकार होकर बदले की आग में जलती रही। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो कुछ हम बनाते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है और बाज़ औक़ात हमारे अमाल के नताइज हमसे बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इल्म और ताकत का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर और इखलाकी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप मज़ीद ऐसी हैरतअंगेज़ दास्तानों के साथ सफ़र पर जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें। आपकी मोहब्बत और हिमायत ही हमें ऐसे मज़ीद दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ मवाद लाने में मदद देती है। मैं हूँ अदबिस्तान से और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।